یا رب میرے خدایا تڑکے میں تینوں ٹونڈا۔ او جی ناظرین، پروگرام یسوع سنگ سویرا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بی ٹی ایل ٹیم کی جانب سے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور پوری انرجی کے ساتھ اٹھے ہوں گے، کیونکہ صبح میں اگر انرجی کم ہو تو پورا دن انرجی کم رہتی ہے، اور یہ انرجی آپ کو ملے گی خداوند کے زندہ کلام میں سے، جو ہم آپ کے لیے ہر صبح لے کر آتے ہیں تاکہ آپ خوش رہیں، شاد رہیں اور مسیح میں بڑھتے رہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کتنے دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ ہمیں بہت جلدی ہو جاتا ہے، ہمیں ویب سائٹ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرور بی ٹی ایل کا یہ پروگرام یسوع سنگ سویرا دیکھتے رہیں اور یسوع کے سنگ سویرا کرتے رہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں۔ جی میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاسٹر منور عنایت ورک صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سفر کیسا رہا آپ کا؟ اچھا، فرسٹ کلاس، بہت اچھا رہا۔ اچھا، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ، بڑے فریش بھی لگ رہے ہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو تھینک یو۔ تو ہم سیکھ رہے تھے خداوند کے کلام میں سے، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اس میں جو دوسری بات تھی وہ تھی کہ اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اجر، جی تمہیں دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میرے پاس ہے۔ اس میں ہم نے بات چیت کی کہ ایماندار جو ہوں گے ان کو کیسا اجر ملے گا۔ جی تو اب ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے ہمیں میسیجز آئے ہیں کہ ایمانداروں کے بارے میں تو آپ نے بات کی، لیکن وہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی ضرور بتائیں کہ ان کے لیے کیا اجر ہوگا۔ جو خداوند یسوع پر ایمان نہیں لاتے یا کلام پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی زندگی ویسے نہیں گزارتے جو کہ اصول اور ضابطے خداوند یسوع نے ہمیں بتائے زندگی گزارنے کے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے میرے پاس ابھی ایک نیا میسج ہے۔ اچھا، کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، وہ خداوند یسوع مسیح کے اصول اور ضابطوں پر اپنی زندگی نہیں گزارتے، اب موقع ہے ان کے لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں، صحیح ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں اور یسوع مسیح کے دیے ہوئے اصول اور ضابطوں پر چلیں گے تو وہ نئی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ خدا کے کلام کو رد کریں، خدا کے کلام کو قبول نہ کریں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہ چلیں اور پھر اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ نہ گزاریں، تو ان کے لیے بھی میرے پاس میسج ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ ایمانداروں کے لیے اجر ہے، تو اس کا مطلب ہے جو دوسرے لوگ ہیں اجر تو ان کے لیے بھی ہے۔ ہاں جی بالکل، دونوں کے لیے اجر وہ لے کے آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم ذرا ان لوگوں کے بارے میں بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتے، ان کا کیا اجر ہوگا۔ صحیح، آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ جی ضرور۔ پر صاحب یہ مکاشفہ کی کتاب بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، جس میں سے آپ بہت سارے حوالے ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوف رکھتے ہیں ہاں جی، اس کتاب کو پڑھنے سے۔ ابھی تو اس دور میں تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، لیکن پرانے دور میں لوگ مکاشفہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اس میں وہ دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ بہت ساری افواہیں تھی، اس طرح سے ہوتا تھا۔ لیکن اس میں بہت سارے بھید ہیں، اور جو وہ بھید ہیں، جو وہ باتیں ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں، تو ان کو سمجھنا لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے، مشکل ہے۔ تو بہت ساری ہے جی، لیکن اس میں بہت کچھ ہے خدا کے کلام میں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اجر کیا ہے۔
आइए हम देखते हैं मुकाशफा की किताब 20वां बाब 20वां बाब और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक 20वां बाब उसकी 11 आयत से 15 आयत तक। इसको आप पढ़ें। जी ज़रूर, मैं हवाला एक दफ़ा फिर बता दूं आपको। मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक आपने कहा ना जी जी। तो कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए। ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। देखें जी, यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम को, तो हम देखते हैं कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में बिल्कुल डाला तो गया। हम यहाँ ये सीखते हैं कि ये अजर मिलेगा उनको, ये अजर मिलेगा। ये अगर वो इस कलाम को आज पढ़ें तो वो जान जाएंगे मेरे हिस्से में कौन सा अजर आ रहा है, मेरे काम कैसे हैं, मेरे अमाल कैसे अमाल हैं। कैसे हैं, बिल्कुल। मेरी जिंदगी कैसे है, मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। और बाइबल मुकद्दस में ये बातें हम सीखते हैं। और फिर लिखा है कि आग की झील दूसरी मौत है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लोग मौत से डरते हैं। इस मौत से डरने की जरूरत नहीं है, और वो दूसरी मौत है। और दूसरी मौत वो है कि मौत के बाद भी एक मौत आएगी। ठीक है। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि उनका इंसाफ, किताबें खोली जाएंगी, उनका इंसाफ होगा। पर इंसाफ के बाद अजर क्या होगा? आग की झील। क्योंकि उनके इमाल ही दुनिया में ऐसे थे, उन्होंने खुदा के कलाम की परवाह नहीं की, खुदा के कलाम को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और उन असूलों और ज़ाब्ते के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी बसर नहीं की, इसलिए उनका अजर ये होगा। और हम अगर देखें मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब जो हमने 12 आयत पढ़ी है, अगर इसकी आप 15 आयत पढ़ें तो बड़ी उनके लिए बड़ी एक ख़ास बात है यहाँ पर लिखी कि उन लोगों का क्या हाल होगा, वो लोग किस लायक होंगे, और खुदा उनको पसंद नहीं करेगा और वो उनको अपनी बादशाह में दाखिल नहीं होने देगा। सही। अजर ये है, यहाँ देखें। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। वो दाखिल भी नहीं हो सकता। नहीं, दाखिल नहीं होंगे, खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। और फिर देखें यहाँ लिखा है मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और मैं खूनी और चाहूंगी, बुत परस्त। बिल्कुल मैं चाहूंगी पास साहब के इस बात पर आप मुकम्मल रोशनी डालें। जी जी, इसलिए कि ये बहुत अहम बात है जो हमने एक आम बात समझ रखी है। हम कलाम को पढ़ते हैं और फिर ऐसे बंद कर करके देते हैं, रख देते हैं और उस पर गौर व खौज नहीं करते। हमारे नौजवान जो हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए ये कलाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अभी ज़िंदगी का आगाज़ किया है, वो ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। जी तो जी इस पर हम ज़रा डिटेल से बात करते हैं एक गीत सुनने के बाद। ठीक जी है, जी, गीत सुनते हैं। तो आइए एक गीत देखते हैं।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बहुत ही खूबसूरत गीत था, बड़ा अच्छा कलाम उसमें पेश किया गया, हम सब ने बरकत पाई। आइए अब इस कलाम की तरफ बढ़ते हैं जिस पर हमारी बातचीत जारी है। पास साहब, आपने बड़ी अच्छी एक आयत हमें दी जो हम चाहते हैं कि बड़ी डिटेल के साथ हम अपने मसीही बहन भाइयों के साथ, अपने नौजवान बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो सीखें कलाम में से और अमलन उसको करने की कोशिश करें। इसमें दो चार बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी खास जी तौर जी पे, जी कि लिखा है कि मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। अब मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये सारी बातें हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी घोल में ली हुई हैं कि हमें ये आम सी बातें लगती हैं। झूठ बोलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से झूठ बोल लेते हैं और कभी फिक्र भी नहीं करते इस बारे में। लेकिन यहाँ पे कलाम जो कि सच है, बरहक है, और इन बातों का जो जिक्र कलाम में, जिन बातों का जिक्र हुआ है वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन सब का होना ज़रूर है। यहाँ कितनी सख्ती से सारी बातों के लिए मना किया गया है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग बाहर रहोगे, खुदा की बादशाही में दाखिल भी असल नहीं हो में बहुत पाओगे। सारे लोग दुनिया में हैं, हाँ जी, वो सब कुछ कर रहे हैं और सोचते भी हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। बहुत गलत तो ख्याल है ये ये, नामुमकिन है, ये बहुत नामुमकिन गलत है, ये ख्याल नहीं हो है। सकता। लिखा है मगर जादूगर, हम्म, जादूगर के लिए लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया गया है। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, इन सब की एक ही लिस्ट है। सही। मतलब अगर कोई जादूगर है तो वो भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है, और वो कोई गुनाहगार है, हरामकार जितना है तो उतना ही बड़ा कोई हरामकार है वो भी उतना ही है। खूनी है जिसने खून किया है, या कोई बुत परस्ती करता है। जैसे लोग पहले दिया जलाते थे और लोग उनकी पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते हैं लोग, और बाइबल मुकद्दस में ये गुनाह जो है ना, बुतों की पूजा हरामकारी के बराबर है। बराबर है। सही। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हरामकारी, हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा हरामकारी पाई जाती है। आप थोड़ा सा वाजे करें। जादूगर तो ये है ना कि जो भी जादू टूने और ये इस तरह की हरकतें जो होती है, जो काला जादू और जी ये जी जी वो जी जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सारे बिल्कुल। तावीज़ गंडे, ये वो सब जो रूहों से ताल्लुकात, और ये सब जादू के हिस्से में आता है। जादूगर वो होता है। तो हमने दुनिया में भी अक्सर, आपने भी नाजरीन देखा होगा, सुना होगा कि ऐसे लोगों की जब मौत होती है ना तो बड़े ख़तरनाक तरीके से होती है। दुनिया में भी हमें जी नज़र आ जी जाता है कि जी जी इनका जी। अंजाम आगे क्या होगा जब दुनिया में ऐसा है। तो हराम कार जो है उसको भी उसी लेवल का कहा जा रहा है। और हराम कार, क्या क्या हराम कारियां हैं अगर। हरामकारियां हम देखते हैं, अगर दुनिया में देखा जाए, इसका हरामकारी का लबे लबाब निकाला जाए तो ये औरत और मर्द के मेल मिलाप के ताल्लुक से, नाजायज, नाजायज ताल्लुकात के ताल्लुक नाजायज, से है। बिल्कुल सही। और फिर हम देखते हैं खूनी। खूनी वो है जो किसी की जान ले लेता है। भाई साहब सॉरी, मतलब मैं चाहूँगी कि इसको और आप डिटेल में बताएं। हमारे बच्चे जो नौजवान देख रहे हैं, शायद वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये बदन मेरी हैकल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपने बदन को गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम खुद गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आज का जो दौर है बड़ा ख़तरनाक है, बहुत खतरनाक हो रहा है। तो यस, ट्रू। या हम किसी के साथ गलत नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करके कर रहे हों, वो हरामकारी में आता है। और इसका अंजाम यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत। और फिर कलाम में अभी आपने सुना था कि जो तेरे पास है उसे थामे रह, वो बिल्कुल। है सब्र, सब्र। वो है आपका ईमान, वो है आपकी क्या कहना चाहिए, गिरफ्त, जो आपके अंदर जो खुदावंद ने चीज़ें आपको दी हैं, जो तोड़े आपको मिले हैं। मिसाल के तौर पे आप बहुत ही अच्छा गाते हो, जी जी मिसाल के तौर पे आप बहुत ही अच्छा कलाम सुना सकते हो, और आपने हरामकारी कर ली तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। देखें जी, यहाँ पर लिखा है हरामकारी और खूनी और बुत परस्ती, ये सारी सारे चीजें बराबर एक हैं। बराबर हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खून करने के बाद हम सोचते हैं कि हमें यहाँ सज़ा नहीं हुई, सज़ाए मौत नहीं हुई, हमारी उम्र कैद होगी, बच उसके गए हैं, बाद हम कुछ बच नहीं हुआ, गए। लेकिन खुदा की लेकिन अदालत में हुआ, उसे लाया जाएगा। हुआ, क्योंकि कलाम में लिखा है जो तलवार से काटते हैं वो तलवार से काटे जाएंगे।
तो वो आपको छोड़ने वाला फिर नहीं हम है। ये बात देखते हैं जी, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला, ये हम ईमानदारों में भी पाया जाता है। सही। ईमानदारों में भी ये चीज पाई जाती है। अगर किसी ने कोई बात की है, झूठी बात की है, अगर हम उसको पसंद करते हैं तो हम भी उसके बराबर के शरीक हैं। शरीक और है। बाइबल में लिखा है कि झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला कहाँ रहेंगे जी? बाहर रहेंगे। बाहर रहेंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईमानदार और हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे? क्या बात। इन बातों से हमें ग्रेज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बाइबल में लिखा है हाँ की जगह हाँ, और ना की जगह ना की जगह ना। पर हम ऐसा करते नहीं। तुम कसम ना खाना, ना आसमान की कसम खाना, ना जमीन की कसम खाना। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, ये साफ लिखा हुआ है। और हम झूठी कस्में और खाते रहते हम हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर हम झूठ को पसंद करते हैं। कोई स्टोरी आ जाए किसी की, लजीज नवाले किसी फैमिली की कोई बात निकल आए, आहा। हाँ वो सच्ची है, वो झूठी है, लेकिन गढ़ने वाले ने गढ़ी और हम पसंद करते हैं तो हम उसके बराबर के शरीक है। बिल्कुल। और फिर खुदा की बात से हमारा कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खतरनाक क्योंकि बात है। ऐसे काम करने वाले, ये सारी लिस्ट है उनकी, ये सारी लिस्ट है उनकी कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो फिर तो हमें सोच लेना चाहिए ना, ये तो वार्निंग है हमारे लिए। बिल्कुल। और गीत हम कौन सा सुनते हैं? पहले ढूंढो खुदा की बादशाही। और ढूंढते वूढते नहीं है हम लोग, हैं सोचने की बात है कि पहले ढूंढो खुदा की बादशाही तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ तो हम ढूंढ कर रहे हैं, हम तो खुदा की बादशाही से दूर हो रहे हैं मेरे अजीज़ों। ये बहुत ही गौर तलब बात है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस तरफ तवज्जो जो है मबसूल कराई है। और खुदा करे कि बहुत अच्छा चेंज आए और जो सुनने वाले हैं वो बरकत पाएँ, और ऐसी बरकत पाएँ कि उनकी ज़िंदगियों में वो बरकत नज़र आए। जी। ऐसे लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। और हमें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। इस दुनिया में खुदावंद ने असूल और ज़ाब्ते दिए, जो मैं बात कर रहा था बार बार असूल और ज़ाब्ते की, वो यही हैं कि उसने कहा कि ये असूल और ज़ाब्ते से ज़िंदगी बसर करोगे तो बादशाही में दाखिल हो जाओगे, और इन असूल और ज़ाब्तों से बाहर रहोगे तो फिर बादशाही से बाहर हो जाओगे। मेरे जहन में एक और सवाल आया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि 10 अहकाम जो है ना वो मूसा के दौर में आए थे, वो पुराना अहदनामा है, तो जो यसु मसीह ने कहा है अब वो करें। यसु मसीह ने कलाम में ये भी कहा कि मैं उस कलाम को रद्द करने नहीं आया बल्कि इसको पूरा करने आया। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ही बातें जो खुदा के हाथ से उस वक्त लिखी गई थी, 10 अहकाम वही हैं। और उसमें भी ये लिखा गया है, उसमें ये कहा गया है कि हरामकारी ना करो, है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी ये हुक्म है, उसमें भी उसमें भी खून ना करो, ये उसमें भी है जो अभी इस कलाम में हम पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें जी उसमें बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल झूठ वही। ना बोला, झूठी गवाही ना देना, तो और वो वो सारी सब कुछ करते हैं। और फिर भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये सब कुछ करने के बावजूद भी कहते हैं जी हम तो ईमानदार हैं, हम तो खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। लेकिन इस पैमाने के मुताबिक ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, वो पिछले उसमें किताब हयात की बात हो रही थी। किताब हयात से मतलब ज़िंदगी की किताब, तो इस बारे में भी बड़े रूमर्स हैं कि खुदा की एक हमने, बल्कि मुझे याद आया कि हमने एक 9th या 10th में एक इंग्लिश का लेसन था, वो इस बारे में था। अब तो वो किताबों में नहीं है, लेकिन मैं 80s की बात कर रही हूँ। उस वक्त 87 में या इस तरह से था, वो उसमें था। तो उसमें यही था कि वो शख्स जो है वो उसका किताब हयात में नाम नहीं होता, तो वो चाहता है कि मेरा किताब हयात में नाम आए, वो कुछ कोशिश भी करता है। आज हम कितनी कोशिश कर रहे हैं किताब हयात में किताब नाम? हयात के तलक से मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ जी। एक शख्स था और उस वक़्त उस ज़माने में कहते हैं कि बहुत सारा पानी आ गया और सब लोगों को कहा गया भाई अपना नाम जाके वहाँ लिखवाओ और आपकी हेल्प की जाएगी। तो बाकी लोगों ने तो, जो गरीब लोग थे जो सोचते थे कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो एक वहाँ चौधरी था उनका। तो अब सब ने नाम लिखवा दिया और चौधरी ने कहा कि नहीं, मैं तो चौधरी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने नहीं नाम लिखवाना। सही है। सब ने बोला, सब जब देने की बारी आई वहाँ पर जिन्होंने नाम लिखवाए उनको देने की बारी जब आई तो क्या हुआ, सबके नाम बुला रहे हैं, सबको वो दे रहे हैं।
لیکن وہ اب وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے. کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں شاید مجھے بھی دے دیں. تو بہت سارے لوگ آج بھی اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جب وہ بلائیں گے تو پھر میرا بھی نام آ جائے گا, شاید مجھے بھی موقع مل جائے. لیکن ایسا نہیں. جن کے لکھا ہے کہ وہاں کتابیں کھولی جائیں گی اور ان کتابوں کے مطابق ان کا انصاف کیا جائے گا, اور پھر جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جیل میں ڈالا گیا. جی آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں. جی ناظرین, بہت ہی اچھا گیت تھا اور کلام میں بھی بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا پروگرام. آئیے کلام میں آگے بڑھتے ہیں. جی پاس صاحب. جی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والا اور گھڑنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر ہوگا. تو یہی بات اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں 21 باب کی 7ویں آیت بلکہ 8ویں آیت سے پڑھیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8 آیت. 8 آیت میں لکھا ہے, مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. جی ہاں جی بالکل. تو ہم دیکھ رہے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں کہ بے ایمانوں, گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں. تو اب ہم جب یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ سب جھوٹوں کا حصہ وہ اجر جو یسوع مسیح لے کے آ رہا ہے, سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہے, یہ دوسری موت ہے. تو ہمیں بڑا واضح ہے, بہت واضح ہے کہ ہمیں اگر ایسے کام ہماری زندگی میں, حرام کاری ہماری زندگی میں ہے, جادوگری بت پرستی ہے اور ہم جھوٹ ہے, ہم حرام کاری کو الگ رکھ دیں, بت پرستی کو الگ رکھ دیں, اگر ہماری زندگی میں جھوٹ ہے اور ہم جھوٹی باتیں گڑھتے اور پسند کرتے ہیں, پھر بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں خاص کر ایسے لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں, جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں, وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہے. تو آج کا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں, خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں. اب وقت ہے, نہیں تو یہ وقت نکل جائے گا تو پھر وہ اس دولت مند کی طرح پچھتاتا رہے گا. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور ایسی گنونی حرکتیں اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جا سکیں. بہت شکریہ پاش صاحب, ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جی ضرور, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اور ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. میرے عزیزو, یسوع سنگ سویرا پروگرام کے ذریعے سے آپ نے خداوند کے کلام کو سنا. جیسا کہ ہم نے اس کہانی میں سنا تھا جو لازر کے حوالے سے تھی کہ جب وہ ابراہم کی گود میں تھا تو جب امیر آدمی کی موت ہوئی اور وہ آگ میں ڈالا گیا تو اس کی خواہش ہوئی کہ کوئی یہاں سے جائے اور میرے بہن بھائیوں کو یہ باتیں بتائے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, اپنی زندگیوں کو بہتر بنائے. تو جواب یہ ملا کہ جب وہ ان کی نہیں سنتے تو مردوں کی, جو اگر مردوں میں سے کوئی جائے گا تو ان کی کیوں سنیں گے. ہمیں بارہا موقع ملتا ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کو سنیں, لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے سیکھیں یا نہ سیکھیں. ایک کان سے سن کر نکال دیں یا پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آئیے عزیزو, ہم یہ عہد کریں
کہ جو کلام کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہماری زندگیوں پر اثر کرنے والی ہو اور ہماری زندگیاں واقعی بدلیں اور ہم بہت سا پھل لانے والے بنیں۔ اسی خیال کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں اور پیار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ اسکرین پہ آپ ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں، ان پر آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ خداوند میں مسرور رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں۔ بہت ساری دعائیں اور پیار آپ کے ساتھ رہے۔ خدا حافظ۔